Hello everyone. How are you? I hope you're doing well and you have been enjoying these sessions, although till now we have completed only one session. But yeah, we'll do our best and we'll cover each and every concept with a very precise and kind of easy to understand form. All right. So in the last lecture we have studied till the concept here, that is till the exercise 1.1. We have studied all the concepts that are necessary to solve the questions of exercise 1.1. I hope you have tried these questions, and after trying this you must have some doubts, or you won't have some, like you'll not be having any doubts. But I doubt that, because someone who is a naive person, who is a new person, if he or she is trying to apply a new taught concept, then definitely doubts will come. So it's good, like doubt should come. It clarifies the things further in your mind, and the fundamentals get more deepened within your mind, and the chances of errors in future, it also gets reduced when you apply it in any further problems. All right. So whatever doubts you have in this exercise, you can ask me. I'll share the platform on where you will have to ask these doubts, and we will just look at these doubts. Moreover, after getting all your doubts, I'll arrange one session to solve the like all the doubts collectively in one session. I think that will be more beneficial to you, because it will be kind of studying in a class type of atmosphere, because you no matter, like you'll learn from your doubts after your doubts get solved, but you learn more when you see the doubts of other persons or other people also, other students also. Because sometimes you like whenever आप जब भी आप देखते हो ना, मतलब कोई प्रॉब्लम को, so maybe you don't get to pinpoint one particular angle, or you don't kind of find one small kind of glitch in that thing or your solution, or there are many things like you alone cannot do that. So आप जब अगर मतलब कलेक्टिवली जब अप्रोच करते हो ना, आप इसके डाउट भी देखोगे, अपने दूसरे फ्रेंड के देखोगे, तीसरे के देखोगे, तो थिंग्स ज़्यादा क्लियर होंगे आप. ओके, सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे लेक्चर. इट विल बी शॉर्ट, दैट इज़ इरेशनल नंबर्स. अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारी नंबर लाइन होती है जो, उस पर रैशनल नंबर्स पढ़े हैं हमने. लेकिन नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स तो केवल नहीं होते हैं, केवल और केवल रैशनल नंबर्स तो होते ही नहीं हैं, उस पर इरेशनल नंबर्स भी होते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर लाइन है, ठीक है. जो इरेशनल नंबर्स पहले तो होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो डेफिनेशन ये है कि नंबर लाइन पे सारे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो गए. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ये मेरी नंबर लाइन है, इस पर या तो मेरे पास रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है. तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है. तो कलेक्टिवली ये पूरी मेरे पास रियल नंबर लाइन बनती है. मतलब कि डेफिनेशन हो गई कि रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. ठीक है. आई होप दैट इज़ क्लियर. ऑल राइट. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द rational number. Since it is not a oh sorry irrational number, since it is not a rational number, so it cannot be represented in a form of p by q, where p and q are integers, q not equal to 0. ठीक है. तो ये हो गया अपने पास, इट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड. ठीक है, कैनॉट बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, जैसे कि हम रैशनल नंबर्स को लिखते आ रहे हैं आज तक और लिख सकते हैं. ठीक है. ऑल राइट. सो the question is, you already know that there are many infinitely rationals, खूब सारे rational numbers हैं. तो some examples irrational numbers और irrational numbers भी खूब सारे हैं नंबर लाइन पे. तो irrational numbers कैसे होते हैं, अभी तो हमने definition देखी है सिंपल. तो what kind of irrational numbers are there, but examples. तो ये देखो, ये examples दिखा रखे हैं. there are √2, √3, √15, रूट लाइक पाई की वैल्यू पता ही होगा आपको, 3.14 ऐसे रिपीट होती रहती है आगे तक. हमें जनरली 3.14 याद रखनी होती है. 0.01, 01, 02, 03, 04, 05, दिस इज दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स. अभी ये तो ठीक है, लेकिन
वी विल सी लाइक वी एज्यूम दैट अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि भाई अभी हमने रैशनल पढ़ लिया और इरेशनल पढ़ लिया, ठीक है। तो अब एक छोटा सा रिमार्क यहाँ पे दे रखा है दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि हम जब रूट वैल्यू लेते हैं ना, कि हम रूट 4 लेते हैं, तो हमेशा इसकी जो वैल्यू आती है हम पॉजिटिव, इसकी जनरली दो चीज़ें देता है, पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है, लेकिन हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर हम एज्यूम करते हैं। ये आगे बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई बार एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस में भी ये यूज़ होता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि कभी भी रूट 4 है, रूट 9 है, इसका आउटपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। अभी क्या है कि पाइथागोरस से हम प्रूव कर सकते हैं इरेशनलिटी ऑफ द नंबर, लेकिन हम नहीं करेंगे अभी बिकॉज इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 10th क्लास। तो हम अभी ये पता, हमें बस इतना जानना है कि रैशनल नंबर, हम इरेशनल नंबर्स को पहचान सकते हैं और रैशनल नंबर्स को पहचान सकते हैं कि नहीं, डिस्टिंग्विश आना चाहिए हमें, ठीक है, करना दोनों के बीच में। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, नाउ एनी नंबर इज़ नॉट लेफ्ट, नन नंबर इज़ लेफ्ट इन आर नंबर लाइन, ठीक है। All the numbers are covered in rational and irrational number that together makes the whole set of real numbers. All right, so now you know everything about the number line, कितने numbers होते हैं, types उनके फलाना, ठीक है। ओके, सो अभी क्या है कि हमने पहले जैसे रैशनल नंबर्स, वी हैव लोकेटेड द रैशनल नंबर्स लाइक बिटवीन टू नंबर्स, like in the last problem we have seen, we have calculated between 1 and 2, if you remember, between 1 and 2 we have calculated 5 rational numbers, or between 2 and 3 you have calculated 4 rational numbers. So these are like we can represent them on the number line also, that is very easy. Now how to represent the irrational numbers on the number line, we will see here that concept. Let's say we have a irrational number which is root 2. Okay, we have root 2 and we need to represent it, we want to represent it on a number line, real number line. अभी क्या है कि रूट 2 होता है जो जनरली हम पाइथागोरस इसमें यूज़ करते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये उसका बेस है, ये लेट्स से बेस, ये उसकी हाइट है, ठीक है, और ये उसकी लेट्स से हाइट को अपन टी मान लेते हैं, ठीक है, और ये इसकी हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये पूरी पाइथागोरस थ्योरम होती है और ये यूज़ होगी यहाँ पे, ठीक है, जो रूट 2 को रिप्रेजेंट यानी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीके में। तो क्या होता है कि जैसे मैं रूट 2 होता है ना, रूट 2 क्या है बेसिकली, हम मानेंगे कि ये एक जनरली ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन दिखा रखी है, यहाँ पर मेरे पास रूट 2 ज़ीरो के आगे मैंने क्या किया कि पहले रूट 2 को मेरे को डिफ़ाइन करना पड़ेगा पहले तो एक ट्राइंगल उसमें, ठीक है। मैंने इसको रूट 2 कैसे बनाऊँ मैं बेसिकली, तो मैं रूट 2 को लिख सकता हूँ, मान लो ये साइड रूट 2 है तो मेरी कैसी बनी होगी, मान लो ये 1 है, तो अगर मैं इसकी हाइपोटेन्यूस निकालूँ जिसका लेंथ भी और हाइट भी है और बेस भी 1 1 है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल की, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइपोटेन्यूस कितनी होगी, पाइथागोरस से निकाल लोगे, ये रूट 2 होगी, बहुत ईजी है। तो मतलब ये लेंथ हो जाएगी अपने पास रूट 2, ठीक है, ये अपने को बनानी है वहाँ पे। तो एज इट इज़ देखो, एज इट इज़ अब यहाँ नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे 0 पॉइंट है नंबर लाइन पे। मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि मेरे को ट्राइंगल इस पे बनाना है, जो कि रूट 2 मेरे को डिस्टेंस पता लग गई है एक्चुअली रूट 2 की, ठीक है, ये रूट 2 मैं ले आऊँगा कैसे, मैंने एक पहले यहाँ पे इंटरसेप्ट लिया नंबर लाइन पे ए पॉइंट, जो कि एक डिस्टेंस पे है 0 से, ठीक है, यूनिट, ये फिर मैंने हाइट ली, हाइट 1 की ले ली, तो ट्राइंगल पूरा कंप्लीट कर दिया, हाइपोटेन्यूस हो गई रूट 2 लेंथ की। अब मुझे रूट 2 लेंथ पता है, तो मैं क्या करूँगा, इतने रेडियस का सेंटर पे रखूँगा अपना, मतलब जो भी पॉइंट है, और वहाँ से मैं पूरी एक सर्कल बनाता हूँ अगर एक रेडियस रूट 2 रेडियस का, ठीक है, रेडियस मतलब रेडियस बराबर ओ बी के बराबर मैं रेडियस लूँगा, है ना, इसके बराबर, और मैं ये इस तरीके से एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये सर्कल होगा और इसका सेंटर ये होगा, तो मतलब कि ये जो यहाँ से अगर मैं एक तरीके से इंटरसेप्ट ही डाल रहा हूँ, जैसे इंटरसेप्ट आपने देखा होगा डालना विद सेंटर ओ एंड रेडियस दिस, तो इंटरसेप्ट जो डलेगी लेट से इट इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पॉइंट पी।
तो जो ओ पी डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा अपने पास √2, क्योंकि ये भी एक तरीके से रेडियस ही है ना इस सर्कल का। ये जो सर्कल आर्क बन रहा है ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है, तो ये भी √2 ही होगा। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास पी पॉइंट है वो √2 है, तो मतलब √2 हमने लोकेट कर दिया नंबर लाइन पे। सो और दिस इज़ ऑल, कि यही मेथड है बस सिंपल, दिस इज़ द ओनली मेथड कि यू हैव टू यूज़ एंड हाउ टू लोकेट द irrational number, that is √2 on a real number line. All right, similarly you can locate √3. Now for √3 you can use like using the Pythagoras. So what you have to use is like how you can, like you will take 1 and then 1, okay, you will get √2. Now again you will take another 1 and you will taking this as a base again. So लाइक कहने का मतलब यह है कि आप पहले 1 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 1 ऐड करते जाएंगे उसमें, वो डिस्टेंस ऐड करना है मिनिमम पॉसिबल। ठीक है, तो √2 आ गया। अब √2, अब मेरे को एक साइड √2 ले ली मैंने, दूसरी मैं कितनी लूँ और यहाँ पे मेरे पास √3 आ जाए, तो वापस से फिर पाइथागोरस लगाओगे तो √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर 2 और प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट का स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, 1 आ गया, मतलब हाइट 1 लेनी है मेरे को। तो इसी में यही दिखा रखा है अपने को कि पहले तो मैंने सिंपल ये तो मुझे बनाना आ गया। ठीक है, अब मैंने ये बेस मान लिया, तो ये एक और ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये बेस √2 हाइट 1 और यहाँ पर पाइथागोरस से √3 आ गया। तो मतलब मेरे को एक्चुअली लेंथ लानी है √3, फिर मैं सिंपल इतनी लेंथ से एक आर्क डाल देता हूँ। ठीक है, आर्क या रेडियस जो भी है, सेंटर के अबाउट, ओ के अबाउट, और वो जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा जो लाइन पे, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये वाली लाइन पे, तो लेट से पॉइंट क्यू पे कर रहा है इस बार, यहाँ पर क्यू पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट, है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास मेरा पॉइंट हो जाएगा जो कि √3 है ओ से। ठीक है, यानी कि ऑरिजिन से, तो √3 इस तरीके से लोकेट हो जाएगा। इस तरीके से आप √4 √4 तो 2 ही होता है, मतलब आप नंबर्स लोकेट कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो ये बहुत सिंपल, हम इसको शॉर्ट रखते हैं इस लेक्चर को, और कोशिश करेंगे कि अगली बार विल ट्राई कि the two exercises, that is exercise 1.1 and 1.2 will be covered. Okay, so I hope ki, the things that are taught in today's lecture that are perfectly clear to you for now, and it was simple, like you know the definition of irrational number, you know the difference between rational and irrational number, and how to locate a irrational number on a real number line. It is very simple concept, and using a Pythagoras you can easily do that. Okay, okay guys, try the exercise 1.2 questions for now, okay, till the third lecture begins. And these are again a conceptual type questions, no hardcore numericals, either a construction or a conceptual questions. I hope you will be able to do all of them without any doubts, but yeah, doubts will definitely come, and it will be interesting to solve your doubts. So I'll wait for your doubts, and we will like cover the doubts of exercise 1.1 and 1.2 within one lecture. All right, thank you for watching. Have a nice day. Keep learning, keep watching.